أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین سیدنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وفرقانہ المجید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صلوات صاحبان عقل و دانش احباب ذی وقار علم دوست احباب تشریف فرما ہیں، اجازت ہے نوکری کا آغاز کی جائے۔ جتنے صاحبان دور دور تشریف فرما ہیں، میرے مولا کا فرمان ہے، میں نے مختصر وقت میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے۔ سرکار ولایت کے چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں کہ علی کا ہر چاہنے والا پھول کی مانند ہے۔ مولا بات رکھے، یہ میسج بھی ہے، پیغام بھی ہے، پھر نوکری کا آغاز کریں گے۔ علی کا ہر چاہنے والا پھول کی مانند ہے، پھول جب ملتے ہیں تو گلدستہ بنتا ہے۔ تمام مومنین تھوڑا تھوڑا آگے آئیں، گلدستہ ولایت سجائیں تو نوکری کا آغاز ہو۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑی تھوڑی زحمت کریں، تھوڑا تھوڑا میرے برادران یہ جو پیچھے تشریف فرما ہے گلدستہ ولایت سجائیں، تھوڑا تھوڑا بھائی آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بنے۔ پیغام دے کے آغاز کرتا ہوں کہ سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ۔ مالک آبر، مولا آبر، مولا ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو آبر۔ ابھی میں نے دیکھنا ہے آپ نے مختصر وقت میں بہادر علی حسنی سے کتنا سننا ہے، اور میں نے کیا آپ کو سنانا ہے۔ سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ، کیوں ہو سکتا ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ مولا آباد رکھے، مالک انٹتے ہوئے ہاتھوں کو آباد رکھے، نتیجے پہ سب بولیں گے، میرے ساتھ ساتھ ہوں تو لطف آئے گا۔ سوچ مت، دیر نہ کر، مجلس شبیر میں آ، کیوں ہو سکتا ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ جتنے ماتمی بیٹھے، ہو سکتا ہے تجھے زہرا کی دعا مل جائے۔ زہرا کہتے ہی اس صاحب عصمت کو ہیں کہ جس کی چادر سے محمد کو شفا مل جائے۔ مولا بیدار ہو کے نعرہ لگائیں گے تو لطف آئے گا۔ ایک زندہ نعرہ لگائیں، حیدری۔ امام زمان سلامت رکھے، آپ ماتمیوں کا عقیدہ پڑھنا چاہتا ہوں کہ علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا۔ اب جتنا وقت دیا ہے اتنے وقت میں اس طرح سنیے گا جس طرح حق بنتا ہے، تشریح کرنے کی ضرورت نہ ہو، بات میری ہو نہ بولیں، بات قبلہ محسن نقوی صاحب کی ہو تو پھر حق بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں علی کا ادنا غلام ہوں میں، بابا جی دعا کیجئے گا، علی کا ادنا غلام ہوں میں، میری طرف توجہ کریں، علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، ہے حب حیدر سے دل معطر، غلاب لے کر میں کیا کروں گا۔ مالک نے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کا بارک ہے، مولا بارک ہے، میری مرضی کا آپ بول پڑے ہیں، یا پیچھے والا محلہ بھی بولے گا انشاءاللہ۔ نتیجے پہ علی کا ادنا غلام ہوں میں، ثواب لے کر میں کیا کروں گا، ہے حب حیدر سے دل معطر، غلاب لے کر میں کیا کروں گا۔ لحد میں آیا تھا جو فرشتہ، وہ کہہ کے محسن چلا گیا ہے، کفن پہ ناد علی لکھی ہے، حساب لے کر میں کیا۔ تھوڑا سا مزید بیدار ہوں تو پھر جملے کا آغاز کرتے ہیں۔ علی مجھے مشکل سے کیا خطرہ، آپ اتنا بہترین بول پڑے، تھوڑا تھوڑا میرا اور ساتھ دیں تو پھر مجلس کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، بابا جی یہ محلہ ٹھیک ہو گیا، یہاں سے ابھی تک بات نہیں آئی، ابھی یہاں سے دعا چاہیے۔ مجھے مشکل سے کیا خطرہ، علی کا نام کافی ہے، بابا جی لحد کا روک دوں رستہ، علی کا نام کافی۔ جو علی کا چاہنے والا ہے، مولا آباد رکھے، آپ نے ہاتھ اٹھایا، یہ بزرگ ہو کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، وہاں سے بزرگوں نے نعرہ لگایا۔ اسی طرح کے ایک بزرگ صحابی سے نبی نے کہا تھا کہ جب تیرے دل میں علی کی ولایت ماں کی طہارت بن کے جوش مارے، اپنی ماں کو سلام کیا کر۔ اللہ اکبر۔ مجھے مشکل
से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। चौथी सत्र पे दुबकियां वालों, जितना हक बने उतना बोलिएगा, मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है। लहद का रोक दूं रास्ता, अली का नाम काफी है। और लहद में या अली कहकर जो उठ बैठा मैं मर्जी से, फरिश्तों ने कहा सो जा, अली का नाम रखे। अगला मोहल्ला बन गया, ये पीछे वाले माहौल थोड़ा सा मजीद बनाए, मेरे साथ दुआ दें तो हक बनेगा। अज़ान ग्राम में कदर एक शेर और पढ़ के अपनी नौकरी का आगाज करना चाहता हूँ कि कब्र में हम, बाबा जी दुआ कीजिएगा, ये मोहल्ला तैयार हो गया, मजलिस का माहौल बन गया। कब्र में हम इसके सिवा क्या ले जाएंगे, नुस्खाए नादे अली खाके शिफा ले जाएंगे। जो कब्र में कम अज कम कफन में नादे अली और खाके शिफा लेकर जाता है, और जिनकी माओ ने दूध नादे अली पिलाकर नादे अली सुनाकर पिलाया है, कम अज कम वो बोले बाकी अपनी दाद अपनी जेब में रखे, मुझे नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ कब्र में हम इसके सिवा क्या ले जाएंगे, नुस्खाए नादे अली खाके शिफा ले जाएंगे। दफन कर देंगे हम जितने मातमी हैं, हक अदा करना दफन कर देंगे। मुझे जब लोग पाकिस्तान में दो फरिश्ते आएंगे और करबला ले जाएंगे। फसलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बाबा जी दुआ कीजिएगा, अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछो। अगर तुम नहीं जानते, मौला बार रखे, आपने दुआ की है, अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। अब बात आहिस्ता से कहना चाहता हूँ, बात बड़ी है। अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से सवाल करो। अहले ज़िक्र वो नहीं होता जो बेटियों से ट्यूशन पढ़ता रहे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह मौला बारके। अहले ज़िक्र वो नहीं होता। अहले ज़िक्र फिर होता कौन है? किसी ने मेरे विलायत के छठे बादशाह के पास आकर इस आयत की तिलावत की, फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, शायरी पे बोले हैं। अब मैंने देखना है जुमलों पे कौन बोलता है। फसअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, सरकार इसमें अल्लाह अहले ज़िक्र किसे कह रहा है? आपके और मेरे विलायत के छठे ताजदार ने मुस्कुरा के सीने पे हाथ मारा और कहा जिसे अल्लाह अहले ज़िक्र कहता है वह हम 14 है। बारक है, मालिक बारक है। इमाम ज़मान साहब, मेरे हिस्से की दुआ हो गई। अहले ज़िक्र किसे कहते हैं? एक शख्स सरकार अली बादशाह के पास आया। अब जितने मलंग है अली बादशाह के हाथ उठा के हैदरी का जवाब दीजिएगा, हैदरी। इमाम ज़मान साहब रखे, ये सारे मलंग बैठे हैं। आपके मिजाज का जुमला कहना चाहता हूँ। एक शख्स अली के पास आया, कहा अली बादशाह बात समझ नहीं आती, जमीन की सवाल करो फौरन जवाब, हवा का सवाल करो फौरन जवाब, फिजा का सवाल करो फौरन जवाब, समुंदर का सवाल करो फौरन जवाब, कहीं की कोई बात करो फौरन जवाब। या अली बंदा ठहरता है, सोचता है, समझता है, फिर जवाब देता है। मेरे विलायत के पहले बादशाह अली मौला मुस्कुरा के कहते, तू बता तेरे हाथ की उंगलियां कितनी हैं? इसने रुका नहीं, ठहरा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं, फौरन कहते सरकार मेरे हाथ की 5 उंगलियां है। सरकार ने कहा तू रुका नहीं, ठहरा नहीं, सोचा नहीं, समझा नहीं। ये कहते सरकार मैं रुकू क्यों, सोचू क्यों? हर वक्त मेरा हाथ मेरे सामने है। जो बंदा सुनने आया है, हर वक्त मेरा हाथ मेरे सामने है। अली बादशाह मुस्कुरा के कहते हैं कि जिस तरह हर वक्त तेरे सामने तेरा हाथ है, उसी तरह हर वक्त अली के सामने पूरी कायनात है। नहीं भाई, ढीला नारा नहीं, नारा ऐसा लगाएं ताकि पता चले कि यहाँ पर मजलिस का विलायत का हाथ बुलंद करके इमाम ज़मान सलाम रखे। मौला आपका बारक। वक्त मुख्तसर है, अब मैं ऐसे ही सुना सकता हूँ, ठहर ठहर के पढ़ता अगर वक्त ज्यादा होता। मौला बार रखे, कहा अली बादशाह बात समझ नहीं आती, जमीन का सवाल फौरन जवाब, फिजा का सवाल फौरन जवाब। तो अली कहते ही उससे है जो बंदों की समझ में ना आए। बहलोल दाना क्या कर रहा था? बाबा जी बहलोल ना दरिया का पानी एक खड्डा खोद के उसमें डाल रहा था। जब वो खड्डा भर गया, वो कूजा भर गया, पानी उधर गिरने लगा। कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि बहलोल ये क्या कर रहा है? बहलोल कहता है अली का दीवाना कैसा होता है? बहलोल कहता है आज दिल कर आया है ये सारी दरिया का पानी इस खड्डे में डाल दूं। अब
अब मैंने देखना है कितने बंदे मजलिस में सुनने आए हैं, कौन अली बादशाह को सोचने आया है। कहता है मेरा दिल बन गया है ये सारा दरिया इस खड्डे में डाल दूं। ये कहते हम कहते थे ना कि बहलोल पागल है, छल्ला है, भला इतना बड़ा दरिया इतने से कूजे में आ सकता है। बहलोल या अली मदद कह के उठा। बहलोल कहता यही तो समझाना चाहता हूँ, जब ये दरिया इस कूजे में नहीं आ सकता, इतना बड़ा अली तुम्हारे इतने से जहनों में कैसे आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नबी ने कहा कुरान माली वाली माल कुरान। अब बात खड़े होकर भी दुआ दे, दुआ कम होगी, बात बड़ी होगी। अल कुरान माली वाली माल कुरान। कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। कुरान को समझना है तो बाबा जी अली से समझो, अली को समझना है तो कुरान से समझो, क्योंकि कुरान भी लोगों ने नहीं बनाया, अली भी लोगों ने नहीं बनाया। कुरान भी वोटों से नहीं बना, अली भी वोटों से नहीं बना। कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है। कुरान भी नाजिल हुआ है, अली भी नाजिल हुआ है। कुरान कल्ब नबी पे उतरा, अली अल्लाह के घर में उतरा। कुरान में सूरह रहमान है, अली रहमान की जान है। कुरान में सूरह आले इमरान है, क्या सुन रहे हो? कुरान में सूरह आले इमरान है, अली फरजंद इमरान है। कुरान में इन्नमा वलियकुम अल्लाह की आयत है, अली विलायत का बादशाह है। कुरान में इन्नमा युरीदुल्लाह की आयत है, अली तहारत का बादशाह है। कुरान तैयब है, अली ताहिर है। कुरान जय्यद है, अली सैयद है। कुरान मुकदमा है, अली वकील है। कुरान दावा है, अली दलील है। कुरान हाजत है, अली हाजत रवा है। कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा। अल्लाह कुरान मुश्किल है, अली मुश्किल कुशा है। आखिरी दो जुमले, जितना वक्त है उतना पढ़ना चाहता हूँ, मौला बार रखे। किबला यहाँ पे मेरे भाई ने, नवीद भाई ने, जो बानी मजलिस है, इन्होंने न्याज का एहतमाम किया होगा। बाबा जी बात बहुत बड़ी है और बात लतीफ है। न्याज का एहतमाम है, आप सब न्याज़ें खाते हैं। हमारे अकीदे में न्याज क्या है? न्याज हमारे अकीदे में पाक है। क्या है? न्याज क्या है? वो पीछे वाले न्याज क्या है? क्या इस पाक न्याज को किसी नजिस ट्रे में डाल के मोमिन को देंगे? क्यों? न्याज पाक है, ट्रे नजिस है। सबील हमारे अकीदे में बाबा जी क्या है? पाक है। पीछे वाले सबील क्या है? क्या पाक सबील किसी नजिस प्याले में डाल के किसी मोमिन को देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि सबील पाक है, प्याला नजस है। अच्छा, कुरान क्या है? कुरान है पाक। क्या इस पाक कुरान को किसी नजस गिलाफ में डालेंगे? क्यों? क्योंकि कुरान पाक है, गिलाफ नजस है। तुबकिया में मिंबर की बुलंदी से बहादुर अली हसनी ज़माने को बताना चाहता है कि न्याज पाक है, नजिस ट्रे में नहीं जाएगी। सबील पाक है, नजिस प्याले में नहीं जाएगा। कुरान पाक है, नजिस गिलाफ में नहीं जाएगा। मेरा अली पाक है, नजिस नस्लों में नहीं जाएगा। जितना हक बनता था उतना नहीं बोले हो। मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है, पहले सुना चुका। अब अगला शेर सुनाता हूँ ताकि आप बेदार हो के सुने। वो बंदा दो जहानों की बलाओं से दूर है, जो बंदा अभी तक खामोश है मर्जी फिर उसकी है। इसके बाद मैंने आखिरी जुमला पढ़ना है। वो बंदा दो जहानों की बलाओं से दूर है कि जिसके दिल में पंजतन की मोहब्बत का नूर है। वो बंदा दो जहानों की बलाओं से दूर है कि जिसके दिल में पंजतन की मोहब्बत का नूर है। मौला अली के नारे से जलता है जिसका दिल, कुछ और हो ना हो वो हरामी जरूर है। इमाम नमाज साहब रखे भैया, तो जन्नत का माहौल बन गया है। किबला कुरान क्या है? कुरान पाक है। कुरान का प्रोटोकॉल कुरान में आ गया। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को छूने के लिए तहारत की जरूरत है। कुरान को जितना बड़ा जुमला था उससे बड़ा ये जुमला है। खड़े होकर भी दुआ दे, दुआ कम होगी, बात बड़ी है, लेकिन जितना हक बने उतना जरूर बोले। आखिरी हलाली तक मैं ये जुमला कहना चाहता हूँ। कुरान पाक है, कुरान का प्रोटोकॉल कुरान में आ गया। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। कुरान को छूने के लिए
तहारत की जरूरत है कुरान को छूने के लिए, तहारत की जरूरत है कुरान को छूने के लिए। तो मिंबर की बुलंदी से जमाने को बहादुर अली हसनी 1400 साल से हम समझाते हुए थक गए, जमाना नहीं समझा। जब कुरान को छूने के लिए तहारत की जरूरत है, बाबा जी मेरे अली को मानने के लिए सजदा पाक होना चाहिए। एक जुमले की मजीद इजाजत देते, एक जुमला मजीद पढ़ूं, मेरा वक्त हो गया, मौला आबाद रखे। किबला कभी भी अली की विलायत को ना छोड़े, अली की विलायत इतना अजीम होती है। अज़ान ग्रामे का किताब है विलायत अली, लिखने वाले का नाम है शेख आयतुल्लाह मोहम्मद शेख अल सनद साहब। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि बरोज़ महशर, मैदान महशर में लोगों को रोक दिया जाएगा। अब मैं अकीदत का जुमला पढ़ना चाहता हूँ, जो बंदा अकीदा रखता है बस वो बोले। इस पूरे मजमे से 5 बंदे बोले मेरा हक अदा होता है। बरोज़ महशर, मैदान महशर में रोक दिया जाएगा। बाबा जी मैदान महशर में रोक के सवाल होगा। किसी ने मेरे विलायत के छठे बादशाह से पूछा कि सरकार कौन सा सवाल होगा? मेरे विलायत के छठे बादशाह मुस्कुरा के कहते हैं अस्सवाल अन विलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर। मेरे दादा अली की विलायत का सवाल होगा तो फिर जमाने को कहना चाहता हूँ बरोज़ महशर याद रखना, तुम्हारा अकीदा ठीक होना चाहिए। तुम्हारे अकीदे में ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, मुहम्मद रसूलुल्लाह हुआ, अली वलीउल्लाह ना हुआ ना। मैं जुमला ठहर के आपको लतीफ जुमला कहता हूँ। एक नोट बाबा जी लिया जाए, अगर नोट के 2 हिस्से करें, नोट के 2 हिस्से करके आधा नोट यहाँ से किसी बच्चे को दे के किसी दुकान पे भेज दें, कहे फला चीज ले आ, तो वो जो दुकान वाला है ना, जब बच्चा आधा नोट देगा या कोई बड़ा चला जाए तो जैसे ही वो दुकान वाला आधा नोट देखेगा क्या कहेगा? कहेगा या फराडी है या पागल है। जो आधा नोट देने आया है या ये फराडी है या ये पागल है। तो अगर तुम्हारे बरोज़ महशर तुम्हारे अकीदे में ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, मोहम्मद रसूलुल्लाह हुआ, अली वलीउल्लाह ना हुआ, अल्लाह जिब्राइल से कह जाए इसे जूते मार के बाहर फेंको, या ये पागल है या फराडी है। ग्रामी कदर वीरान किस तरह ये सहन फातमे, किसकी लगी नजर के ये घर मात में। अरजान ग्रामी कदर ये अयाम ऐसे हैं कि समझ नहीं आती कि अली अकबर के सीने में लगी बर्छी को पढ़ें, कासिम के हुए टुकड़ों को पढ़ें, अली असगर के लगे गले में तीर को पढ़ें, हुसैन का पामाल हुआ बदन पढ़ें, या ज़ैनब की लुटी हुई चादर पढ़ें। अजरकमल अल्लाह। अज़ीज़ान किराम कदर, मुझे बाबा जी ने हुक्म दिया है कि शहजादा अली अकबर का मसाइब पढ़ना। मैं जुमले ज़्यादा नहीं 2 से 4 पढ़ना चाहता हूँ। किबला जब मेरे मौला शहजादा अली अकबर अपने बाबा के पास आए ना, तो बाबा के पास आकर कहते बाबा जान मुझे इजाज़त दे, मैं आपके दीन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। जितने सैयद हैं कम से कम वो बुलंद आवाज में हाय करे, बाकियों की अपनी मर्जी है, लेकिन आप थक जाते हैं। जो बकिया छोड़ के नबी की जख्मी पहलू वाली बेटी आती है ना, वो नहीं थकती, रोता वही है जिसके सीने में जितना दुख होता है। अज़ादारो अली अकबर ने कहा मौला हुसैन, बाबा हुसैन मुझे इजाजत दे, मैं आपके दीन पे कुर्बान होना चाहता हूँ। हुसैन तड़प के कहते अली अकबर काश तेरा कोई 18 साल का जवान बेटा होता, वो तुझसे मरने की इजाजत मांगता, मैं देखता अली अकबर तू कैसे इजाजत देता है। अली अकबर जब भी मुझे नाना के चेहरे की जियारत करनी होती थी तो मैं तेरा चेहरा देख लेता था। अली अकबर मुझे जब नाना याद आते मैं तेरा चेहरा देख लेता। अली अकबर कहते बाबा जान सब चले गए, अब मुझे इजाजत दे।
अज़ादारो अली अकबर जो ही घोड़े पर सवार होकर चले ना, वक्त मुख्तसर है, मुख्तसर बात करना चाहता हूँ। अली अकबर घोड़े पर सवार होकर, बाबा जी सैयद हैं माफ करना, अली अकबर घोड़े पर सवार होकर जो ही चले ना, थोड़ा सा आगे चले, क्या देखा, अब किसी के भागने के पीछे से सदाएं आ रही है, किसी के कदमों की सदाएं आती है। एक मर्तबा अली अकबर ने घोड़े के रोक के पीछे देखा, क्या देखा, हुसैन कभी जमीन पे गिरते हैं, कभी जमीन से उठते हैं। हुसैन कभी जमीन पे गिरते हैं, कभी जमीन से उठते हैं। अली अकबर जीन से जमीन पे आए, जमीन पे आके कहते बाबा अगर इजाजत नहीं देनी तो ना दे, कम अज कम मेरे पीछे न भागे। हुसैन तड़प के कहते अली अकबर, और तेरे जाने से मेरी आंखों का नूर चला गया। अजरकम अल्लाह। अज़ादारो अली अकबर मैदान में आए, अली अकबर ने हमला किया, हमला करके अली अकबर वापस आए, वापस आकर बाबा को कहते बाबा जान मुझे प्यास लगी है। हुसैन ने कहा अकबर मेरे पास पानी होता तो तुझ जैसे जवान बेटे से छुपाता, आ मैं अपनी जबान तेरे दहन में रखता हूँ। अली अकबर ने अपने जहन को खोला, एक मर्तबा हुसैन ने जो ही जबान अली अकबर के मुंह में डाली, अली अकबर ने तड़पना शुरू किया, तड़प के मुंह से जबान निकाली, कहा बाबा आपकी जबान तो मुझसे भी ज्यादा खुश्क है। अजरकम अल्लाह। कहा जा अली अकबर तुझे नाना मोहम्मद से राव करेंगे। अज़ादारो अली अकबर मैदान में आए, अली अकबर ने हमले करने शुरू किए। जैसे ही अली अकबर ने हमले करने शुरू किए ना, यह एक कमीना था जो इस फौज का सरबराह था, उसने सदा देकर कहा तुम्हें नहीं पता ये हाशमियों का जवान है, हाशमी जवान एक एक करके नहीं मारे जाते, इससे धोखा दे के मारो। इतना कहना था, एक कमीने ने कहा अली अकबर तू जंग कर रहा है, तेरी माँ ज़ैनब के खैमे में आग लग गई है। अली अकबर ने खैमे की तरफ देखा, एक कमीने ने आगे बढ़ के बर्छी अली अकबर के सीने में मारी। अल्लाह अकबर। बर्छी का लगना तो अली अकबर जीन पे संभल न पाए, एक कमीने ने गुर्ज मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेजा मारा। अली अकबर जीन से जमीन पे आकर कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए बाबा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल करे। अज़ादारो हुसैन अली अकबर के लाशे पे आ रहे हैं ना, तो किस तरह से आ रहे हैं। हुसैन 4 कदम चलते हैं जमीन पे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जमीन पे गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जमीन पे गिर जाते हैं। अज़ादारो जब 7वीं बार अली अकबर का बाबा जमीन पे गिरा, अब मेरी तरफ देखिएगा, अली अकबर के बाबे से उठा नहीं गया मेरे हुसैन, फिर इस तरह अकबर की लाश पर आए, पिदर बर लाश पिसर जानू बाजानू, मेरे मौला ने कोहनियों के बल चलना शुरू किया। एक मर्तबा सदा देकर कहते हैं अकबर के कातिलों से, और किसी ने मेरा मसला होता हुआ जमीन पे आता देखा है, किसी ने मेरा जवान अकबर जमीन पे आता देखा है। अज़ादारो जो हाय करने की उम्मीद से आया है, बुलंद आवाज से हाय करना। हुसैन चलते चलते अली अकबर के लाश के करीब पहुंचे, क्या देखा, अली अकबर जख्मों में चूर है। एक हाथ उठाकर कहता है बाबा जान आप पर मेरा सलाम। हुसैन तड़प के कहते हैं हुसैन इतना गरीब हो गया, पहले बेटा तो 2 हाथों से सलाम करता था, आज एक हाथ उठा के सलाम कर रहा है। अली अकबर तड़प के कहते हैं बाबा जान दूसरे हाथ से मैंने बर्छी को पकड़ा है, बर्छी मेरे जिगर को खाए जाती। अजरकम अल्लाह। दूसरा हाथ मेरी बर्छी पे है, बर्छी मेरे जिगर को खाए जाती है। हुसैन कहते हैं बेटा एक मर्तबा तू सब्र कर, तू शेर खुदा का पोता है, मैं खलील करबला हूँ। हुसैन ने कहा तू सब्र कर, मैं तेरे सीने से बर्छी निकालता हूँ। अब जब बंदा हाय करने आया है मर्जी उसकी है, तू थक जाता है, जब बकिया छोड़ के नबी की जख्मी पहलू वाली बेटी आती है, वो तेरा पुरसा कबूल करने आती है। हुसैन की माँ को उसके लाल का पुरसा पेश करना। एक मर्तबा हुसैन ने एक जानू जमीन पर रखा, दूसरा जानू अली अकबर के सीने पे रखा, अली अकबर के सीने से बर्छी में हाथ डाला, अली अकबर की बर्छी निकालने के लिए कहा या अली मदद। बर्छी के साथ अली अकबर का कलेजा बाहर आया, जमीन करबला में जलजला आया। अली अकबर तड़प के कहता है बाबा ओ बर्छी मेरा कलेजा। अजरकम अल्लाह। बाबा बर्छी
برچھی میرا کلیجہ کھا جاتی ہے۔ عزادار حسین نے بیٹے کی برچھی نکالی، حسین نے علی اکبر کو اٹھایا، چلتے چلتے خیام کے قریب اس مقام پہ آئے جہاں پہ ام لیلہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ جب خیموں کے قریب پہنچے، علی اکبر نے آخری سانسیں لینا شروع کی، زمین کربلا میں زلزلہ آنا شروع ہوا، حسین کی نظر گئی۔ ایک مرتبہ حسین تڑپتے کہتے ہیں اگر کسی نے علی اکبر سے اس کی زندگی میں ملنا ہے، ایک لمحے سے پہلے بہن زینب خیموں سے باہر اور تیرے علی اکبر آخری سانسیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔